حضرات، اس سے پہلے آپ آم کے سلسلے میں خوبصورت چیزوں کو میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ عام کی تاریخ کے بارے میں بات چیت ہو جائے۔ بالکل کہا جاتا ہے کہ جب سکندر ہندوستان آیا تو واپس جاتے ہوئے سندھ میں آموں کا ایک بڑا باغ لگا کر چلا گیا۔ اکبر بادشاہ نے بہار میں آموں کا ایک بہت بڑا باغ لگوایا تھا، جس میں 1,00,000 درخت تھے، وہ لکھی باغ کہلاتا تھا۔ اسی طرح ہمارے یہاں ملیح آباد میں نواب فقیر محمد خان گویا ہوا جنگ، جو جوش ملیح آبادی کے پردادا تھے، انہی نے بھی 1,00,000 پیڑ لگوائے تھے، جو باغ لکپیڑا کہلاتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب تخمی آم تھے، قلم کا رواج نہیں شروع ہوا تھا۔ قلم کیسے بنتی ہے؟ ایک بیجو درخت جو سال 2 برس کا ہو جاتا ہے، جب اس کا تنا اتنا موٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم کھود لیتے ہیں، پھر اس پیڑ کے نیچے لاتے ہیں اس پیڑ کی ہمیں ضرورت ہے آم کی، اس لیے کہ اگر دسہری کی ہم 100 گٹھلیاں بو دیں تو اس میں کوئی دسہری نہیں نکلے گی، 100 نئی قسم کے آم نکلے گے، اس لیے قلم کی ضرورت ہوئی۔ قلم کیسے بنتا ہے؟ یہ بیجو ہے، وہ درخت جس سے ہمیں قلم لینا ہے اسے مدر پلانٹ کہتے ہیں۔ اس بیجو کو یہاں سے چھیلتے ہیں، پھر اس شاخ کو چھیلتے ہیں اور دونوں کو ملا کر یوں باندھ دیتے ہیں کچلی سے، یہ 20-22 دن میں جڑ جاتے ہیں۔ جب یہ جڑ جاتے ہیں تو بیجو کا سر کاٹ دیتے ہیں، ابھی یہ شاخ میں لگا ہوا ہے، پھر 10-15 دن کے بعد اس شاخ کو آدھا کاٹتے ہیں اور 15 دن کے بعد پورا کاٹ دیتے ہیں، تو اب یہ درخت تیار ہو گیا ہے، اب یہ دسہری کا درخت ہے۔ اس میں جو پھل آئے گا وہ وہی آئے گا جس شاخ کو باندھا گیا ہے، بیجو صرف اسے غذا دے گا۔ تو دسہری کا یہاں سے لے کر پاکستان تک بڑا چلن ہے۔ آج نکلا ہے کہ پاکستانی آم کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے والد کا سارا کاروبار ملتان اور بھاولپور سے تھا قلم کا۔ 1946 میں 5/3/1946 کو کاکوری ریلوے اسٹیشن سے قلموں کا ایک جھابا انہی نے بک کیا، ایسٹ انڈیا ریلوے لمیٹڈ اس پر لکھا ہوا ہے، وہ رسید رکھی ہے میرے پاس۔ اس کا کرایہ آپ جانتے ہیں اس وقت کیا تھا؟ 1 روپیہ 4 آنے ایک جھابے کا لاہور تک۔ وہ ملتان اور بھاولپور کے لوگوں نے سینکڑوں بیگھے میں باغ لگائے۔ پورے پنجاب میں اس وقت جتنا آم پیدا ہوتا ہے اس کا 30% آم جو ہے وہ ملتان میں پیدا ہوتا ہے، تو سب ہمارے یہاں کی قلمیں ہیں، اور وہ ساری قسمیں جو ملیح آباد میں ہیں۔ تو یہ دسہری وجود میں کیسے آئی؟ ابھی یہاں ذکر آیا عبدالحمید خان قندھاری، جنہی نے رحمان کھیڑا جو کہلاتا ہے، اصل نام انہی نے رکھا تھا رحمان نگر، اناؤ ضلع میں گنج مراد آباد ہے۔ وہاں شاہ وصل الرحمان صاحب ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے وہ مرید تھے، ان کے نام پر انہی نے رحمان کھیڑا آباد کیا، اور انہیں فکر یہ تھی کہ کوئی ایسا آم جو بازار کا آم بن سکے اسے لایا جائے۔ چنانچہ پورے ہندوستان سے انہی نے آم منگائے،
हर किस्म के, और उन्हें रखा और जांचा, मगर कोई काम उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरा। एक गांव है दशहरी हरदोई रोड पे मलियाबाद से पहले, वहाँ का एक आदमी उनके यहाँ मुलाजिम था। उन्हें कहा मियाँ हमारे यहाँ एक पेड़ लगा है, गाँव में चल के देख लीजिए। वो फैला हुआ था। उस ज़माने में कारें और मोटरसाइकिलें नहीं थी, लोग ये तो पीनसों पे चलते थे या घोड़ों पर। उनके पास 4 कहार रहते थे, 1 पीनस रहती थी, 2 साथ चलते थे, 2 लगते थे। करीब ही था रहमान खेड़े से। दशहरी गांव पहुंच गए, पेड़ पूरा फैला हुआ था। उस खेत के मालिक को बुलाया, उससे कहा भाई इसमें से कुछ आम ले लें। उस वक्त तक लोगों की नीयत खराब नहीं हुई थी। उसने कहा मियाँ आपका पेड़ है, चाहे जितने ले लीजिए। तो एक झागा आम उन्होंने टुकवाया, उसका देखने में अच्छा था, उसे पाल लगाया। पाल लगाने का तरीका ये था, एक चारपाई पर पोशक बिछा दी जाती, फिर उस पर अखबार, फिर उसके ऊपर आम, फिर अखबार, फिर लाभ डाल के फिर फुला दिया जाता था। 1 हफ्ते के बाद वो कुनमुनाता था, यानी खुशबू भी निकलती थी, जो इस बात की दलील थी कि आम पक गया। तो जब आम पक गए तो उन्हीं उसको चाकू से तराशा और काशें निकाली, काश कहते हैं, हाँ खाया उसे, तो आम पसंद आया। फिर वो पक्के आम एक जगह उन्हीं खुली जगह पर रखे, 1 हफ्ते तक खराब नहीं हुए। तो इनका ये आम बाजार का आम बन सकता है। ज़्यादा फिर गए उसके यहाँ और उससे कहा भाई इसके हम कुछ कलम बनवा लें। आपका पेड़ चाहिए जिससे बनवा लीजिए। वहाँ से एक मचान बनाया गया और 100-200 कलम उन्हीं बनवाए, और जब वो तैयार हो गए तो धागों में रखने के लिए उस किसान से कहा बहू को बुलाओ। बहू चादर में लिखती हुई आई, कहा अपने हाथ से तुम कलम इस जाबे में रखो ताकि इसकी फसल पैदा हो। जैसा वो कलम ला के अपने यहाँ नर्सरी में मदर प्लांट्स में 150-200 कलम लगा दिए, और सबसे पहले उन्हीं 200 बीघे में अपने बाग लगाए। और उसके बाद पूरे मुल्क में पहली नर्सरी 1902 में रहमान खेड़े में उन्हीं ने गुलजार रहमानी के नाम से बनाई। नीयत खराब नहीं हुई थी, चाहते तो अपने नाम पर इस आम का नाम हमीदिया भी रख सकते थे। हमीदिया रखा उन्हीं ने कहा, लेकिन चूंकि दशहरी गांव से लाए थे उसे, ज़्यादा उसका नाम दशहरी ही रखा और पूरी दुनिया में उसे फैला दिया कलम तराशी के जरिए। हमारी बदनसीबी ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज अब्दुल हमीद खां कंधारी को नहीं जानती। मलियाबाद के जो नए कारोबारी लोग हैं वो उनका जिक्र करके समझते हैं उनका कद छोटा हो जाएगा, ज़्यादा उनका जिक्र भी नहीं करते। रहमान खेड़े में जो मैंगो रिसर्च सेंटर कायम हुआ है उसका नाम ही होना था अब्दुल हमीद खां कंधारी मैंगो रिसर्च सेंटर, लेकिन किसी सरकार ने उधर तवज्जो नहीं दी और पूरी दुनिया को और हिंदुस्तान को एक ऐसा आम दे दिया जो आज भी बाज़ारों की रौनक बना हुआ है। और आम के बारे में हमारे शायर ने कहा है आम को हासिल शरफ फिरदौस के आसमान पर, आम को जन्नत के फलों पर बरतरी हासिल है। लब बंधे हैं इसलिए शीरीनी है गुफ्तार पर। ये होड़ जो एक दूसरे से चिपट रहे हैं, यही सबब है कि जब हम आम का जिक्र करते हैं तो होड़ एक दूसरे से चिपटने लगते हैं। अभी यहाँ जिक्र आया कि इसको उससे मिलाया और उसको उससे मिलाया। आम कोई 2 आम मिल के तीसरा आम नहीं बन सकता। हर नया आम गुठली से पैदा होता है। और अच्छा आम कैसे पैदा किया जाए इस पर भी अब्दुल हमीद खां कंधारी ने रिसर्च। गुठलियाँ बो दी जाती थी, रात में गैस जलती थी, आदमी निगरानी करते थे, और जब गुठली से कल्ला फूटता था तो उस पर निशान लगा दिया जाता था कि ये कल्ला चांदनी रात में और पूर्वा हवा में फूटा है या पछुआ हवा और अंधेरी रात में फूटा हुआ है। इस तरह उन्हीं ने मालूम किया कि जितने कल्ले चांदनी और पूर्वा हवा में फूटे हैं वो आम अच्छे
बड़े कद के, खुशरंग और खुशमदा होंगे, और अंधेरी और कछुआ हवा में फूटने वाले आम छोटे हो, खट्टे हो, बदमजा होंगे। इस तरह उन्होंने तकरीबन 100 किस्में पैदा की। उस वक्त उनके 4 चांद मशहूर थे, 4 नाम थे, हमीदिया, लाहूतिया, अलमास, ज़मुर्रद। ज़मुर्रद ऐसा आम है जो अंदर से सब्जी माइल होता है। ये सब कुदरत की देन है, उन्होंने सिर्फ रिसर्च की और निगरानी की, तो इस तरह के आम उन्होंने पैदा किए। और 1902 में उनका इश्तिहार निकलता था। इन चारों आम के एक कलम की कीमत 50 रुपए थी, लेकिन उसकी कीमत वो नहीं लेते थे। उनका ऐलान था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने किसी मजहबी और तालीमी इदारे में पैसा जमा कर दे और उसकी रसीद भेज दे, वो कलम ले जाए। तो आमों के नाम जो उन्हीं ने रखे, असलुल मुकर्रर यानी शहद से दूनी मिठास होती है। अलम अब्बास लंबा आम होता है, उसका नाम अलम अब्बास रखा। शीर हयात बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, सफेद, कच्चा है तो सफेद, पकने के बाद बिल्कुल सफेद। शीर हयात एक आम अंदर से बिल्कुल सुर्ख होता है, खून की तरह। उसका नाम उन्हीं ने रखा है शहीद नाज, शहीदों को जिस पर नाज हो। तो इस तरह के, और कोई भी नया आम पैदा करने के लिए हमें कम से कम 5 बरस से 7 बरस तक का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए कि तुखमी आम 7 बरस से पहले फल नहीं देता। तो इतनी मेहनत और जाफुशानी करके रहमान खेड़े में जो उन्हीं ने काम किया था, उसको जानने वाला आज कोई नहीं, मेरे बाद भी कोई बताने वाला नहीं होगा। इसलिए बलियाबाद में सब लोग कारोबार कर रहे हैं, आम के बारे में नहीं जानते। तो आज जब दूसरी चीज़ उन्हीं ने कोशिश ये की थी कि कलम से नजात मिल जाए, असल गुठली से वही आम पैदा किया जाए। उस पर उन्हीं ने काम भी किया। इसमें कुछ गलतियाँ हो गई जो मुलाजिम थे उनसे, लेकिन दशहरी की तरह का एक काम जो दशहरी के बाद चलता है, लेकिन उतना मीठा नहीं है, बस उससे बड़ा है, वो भी उन्हीं ने पैदा किया। और एक ख़ास चीज़ उन्हीं ने बताई थी उस वक्त, आज तो साइंस वाले बता रहे हैं कि बाग का मालिक बाग में अगर जाए पहले और दरख्तों को छुए और पत्तों को हिलाए तो उससे बाग को खुशी होती है और वो जल्दी बाग तैयार होता है। दूसरी चीज़ उन्हें ये मालूम की थी कि हर बाउर में 2 कटोरियाँ होती हैं, एक नर और एक मादा। ये दोनों कटोरियाँ जब चांदनी रात में मिलती हैं तो मादा बाउर की कटोरी में एक बूंद छोड़ देती हैं और सूरज निकलते ही नर बाउर की कटोरी गिर जाती है। इस तरह वो अंबिया बन जाती है। तो अंबिया आमतौर से फरवरी में ये अमल होता है। इस साल चूँकि बहुत लेट आया, मार्च में, ज़्यादा 1 साल महीना लेट हो गया, 6 महीना, इसलिए कद ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, आम छोटा रह गया। बहरहाल आम एक आर्ट है, एक फ़न है, और इसको आर्ट बनाने का काम नवाबी ने मुर्शिदाबाद में किया था। वहाँ से हम लोगों ने, बलियाबाद के लोगों ने लिया और आम को छीलने का जो जिक्र आया है, एक धार और महीन चाकू होता तो मैं छील के आपको दिखाता कि आम किस तरह छीला जाता है, उसकी खाशें किस तरह निकाली जाती हैं, उसे किस तरह छुआ जाता है, उसे किस तरह खाया जाता है। आम को ज़बान और तालू की मदद से खाना चाहिए। अगर दांत लग गया तो आम खाना हराम है। तालू और ज़बान की मदद से, और ऐसे आम है हमारे यहाँ गाँव है जिसका मैंने जिक्र किया, छीरेहयात। एक मंत्री जी कभी आए थे, उन्होंने उसे उठा लिया और मुँह दबाया और सूंघा। अजीब इत्तेफाक है, जब से उन्हें सूंघा कई बरस हो गए, वो आम अंदर तक सड़ा निकलता है, काला होता है।
एक ये अंगूठा, हमारे ऐसे आम हैं, आप कच्चा अगर दबा दें तो पाल रखें तो गुठली तक सड़ जाएगा। दूसरे, पहले हम खोंचा बनाते थे, एक बांस में जाली बांधते थे, उससे आम को तोड़ते थे। लेकिन आजकल ज़माना तेज़रो है, जो लोग मंडी आम भेजते हैं उन्हीं ने एक लगी बना ली, उससे गिराते रहते हैं, तो वो धमक इतने ऊंचे 20-22 फीट से जो आम गिरेगा उसमें जो धमक पहुंचेगी तो वो अंदर तक खराब हो जाता है जब पकता है। दूसरे, पानी, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70-80 साल की है, उन्हीं ने जो दशहरी अपने ज़माने में देखी होगी, सोने की तरह चमकती है, लेकिन आज काली हो गई, इसलिए कि उसका वज़न बढ़ाने के लिए जब वो कौड़ी की इतनी होती तो बाग में पानी भर देते हैं, ज़्यादा उसका रंग भी बदल जाता है, अंदर से नरमा हो जाती है, बदमज़ा हो जाती है, और दशहरी की वो मिठास जो पहले थी आज नहीं रह गई है। मेरे ख्याल से वक्त ज़्यादा हो गया है, आपका मैंने बहुत वक्त ले लिया, अभी बड़ी लंबी दास्तान है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने